start with the topic that I have selected for today, emerging sectors for 2023. So before I talk about the topics or the sectors of 2023, let's discuss the way forward of the market. So I was not active from last couple of months. Last couple of days. So I just tweeted about the pattern which are which are developing or which have already developed on multiple indices, whether it is Nifty, small cap index, or Bank Nifty, and those patterns as well as the behavior is suggesting that somehow we are going to have a consolidation in next couple of days or even weeks, right? Until unless we can't negate those patterns in next two sessions max. I don't think so ki these patterns are going to get negated in next two sessions, and if these sessions are going to get negated, then we will take it positively, right? I have already suggested in my educational group at Cosmofeed, so link is there in the profile, that key until unless small cap index crosses or gives a breakout above 10,200, we need to be cautious, or we need to be very watchful. We need to be in the stocks, very selective stocks, right? We should not participate much, right? Or we should not participate blindly, right? So I guess it is happening on the expected line. It could not able to cross its earlier high, which was 10,180, right? And today's high would be around 10,178 in on small cap index. And so we need to watch. We need to wait for this week. So if we don't find a closing above 10,200 in next two or max three sessions, then believe me, guys, we're going to have a consolidation, because we are not going to have that higher high or higher low confirmation on that index. Similar thing is for Nifty. So Nifty may, I guess, we have made a lower low, right, around 10,700. Sorry, lower high. I'm very sorry. Lower high around 18,700. So now lower low is awaited if we follow that evening star pattern. So for all the friends who are new or who are not familiar with candlestick patterns, let me tell you, the evening star and morning star are very convincing pattern, or we can say very significant pattern. If these patterns form around or at important levels or supports, you can say, or you can say EMRs, right? So if you see the price action, today's pattern has or you can say this entire evening star pattern has developed in between 10 or 20 EMA, which is a short term support, you can say. And as per the pattern, we have broken down, and we may see a follow up in next 2-3 sessions, right, until we negate these patterns. So malab, this is my understanding, or I'm just saying basis my experience ki yahan pe it is very difficult for Nifty to cross and close above 18,700 or small cap ka 10,200 के ऊपर. I believe a consolidation plus as well as correction of at least 3 to 5% in both the index, मतलब ये होना है, और शायद जल्दी होगा या दो हफ्ते में होगा, ये कह नहीं सकते हैं. some people were asking about the center rally and all. देखो ऐसा होता है मार्केट में, हर चीज वो नहीं होती है कि पिछले 5 साल से एक चीज हो रही है तो छठे साल भी होगी. वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक. सेंटर रैली आएगी, बजट रैली आएगी, हम जरूरी थोड़ा है. अब अगले हफ्ते मतलब हाइपोथेटिकली लेट्स थिंक कि नेक्स्ट मंथ कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया ग्लोबली,
राइट, जियोपॉलिटिकली या इंडिया में कुछ नेगेटिव हुआ है, मतलब जस्ट ए रफ थॉट, तो मतलब हाउ कैन यू बिलीव कि बजट रैली आएगी? आप सोचो, ऐसा नहीं होता है, राइट? मतलब वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक, वी शुड नॉट हैव दैट हर्ड मेंटेलिटी कि बजट रैली तो आती है या सेंटर रैली तो आएगी, ऐसा नहीं है, राइट? सेंटर रैली आनी होती ना, तो आप सोचो कि स्मॉल कैप में सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं आज से 7 दिन पहले, जो कि नहीं लग रहे हैं इतने, राइट? हमारे जो डोमेस्टिक मनी आती है या एफआई छुट्टी पे चले जाते हैं, जो भी थ्योरीज बनती हैं वो सब नैरेटिव्स हैं, सारी चीजें. बट वी नीड टू सी द प्राइस एक्शन इज क्लियरली सेइंग दैट indexes index has broken down. Whether it is small cap, निफ्टी, इवन बैंक निफ्टी में भी आपको इवनिंग स्टार पैटर्न मिलेगा. और जब भी ये सब पैटर्न्स, इवनिंग रिवर्सल पैटर्न्स, चाहे वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न हो या बेरिश रिवर्सल पैटर्न हो, whenever these patterns form near important EMA 200 पे हो या ऊपर में रिवर्सल बन रहा हो, तो significance of these patterns increase when these patterns form near important EMAs, ऊपर में या नीचे में. मतलब अगर 10-20 EMA के आसपास बन रहा है इवनिंग स्टार, तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो रिवर्स कर गया है. अगर 200 EMA के आसपास मॉर्निंग स्टार बन रहा है विच इज अ रिवर्स पैटर्न ऑफ, और यू कैन से बुलिश रिवर्सल पैटर्न, तो मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है. सो इनिशियल साइंस आ गए हैं, और अगर ये ट्रेंड सही है, निफ्टी और जो स्मॉल कैप इंडेक्स बता रहा है बेरिश इनकल्फिंग का, तो अगर ये सही है तो ये आने वाले मतलब आने वाले टाइम पे आपको डिक्लाइन दिखाएगा. और अगर सही नहीं है तो 2 या 3 सेशन मैक्सिमम में नेगेट होना जरूरी है, राइट? तो मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू बेसिस माय एक्सपीरियंस, बहुत रेयर हुआ होगा कि कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना हो और वहां वो नेगेट ना हुआ हो 2-3 दिन में, और उसके बाद वहां से रिवर्स प्राइस आ गया हो किसी न्यूज की वजह से. ज्यादा टाइम्स में ये देखा गया है कि कोई भी पैटर्न बनता है किसी भी चार्ट पे, डेली पे खासकर, तो अगर वो नेगेट होना है तो 2-3 सेशन में हो जाता है. लेकिन अगर 2-3 सेशन में अगर वो नेगेट नहीं होता है, तो मतलब चांसेस ये होते हैं कि जो भी वो रिवर्सल बना है उस साइड में चाल बढ़ती है, घटती नहीं, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं जाती है. तो अगर ये नीचे की तरफ की चाल दिखा रहा है, हो सकता है 500-700 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिले. अगर ये नेगेट नहीं होता है 2 से 3 सेशंस में, तो आपको ये करेक्शन देखने को मिलेगा, प्रॉब्ली अराउंड 17,800 या 17,600 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. सो बीइंग अ ट्रेडर वी नीड टू बी कॉशियस, बीइंग एन इन्वेस्टर आल्सो वी नीड टू बी वॉचफुल फॉर अपॉर्चुनिटीज. अगर ये आता है तो आपको शायद मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिले, राइट? दिस इज अबाउट द निफ्टी एंड इट्स पैटर्न. जो मतलब आई हैव क्लियरली स्टेटेड कि whatever patterns you are seeing on the daily chart, let's watch for next 2-3 sessions max. reversal अगर मतलब if there is any change negate होता है तो then it's okay, else you'll see a similar kind of move, right? Probably down move, right? Now about the emerging sectors. So last year, or you can say in 2022, around February or January, I have clearly said defense would do good as well as sugar would do good. Sugar may we have exited in April, right? Because the kind of rise we have seen in the commodities, and that was the commodities peak. I have clearly mentioned in my educational group on Cosmofeed that commodities are peaking out during the April. I mentioned this thing. You can check my chat, and we need to be selective in commodities, or we need to avoid if you are a trader, right? Better to shift your money in different areas, right? And you see a very good decline from those areas, whether it is metal or sugar and all, right? So all these stocks are not recovered their 52-week high, or you can say not recovered from those levels which they have shown in the month of April 2022 or May 2022, right? And I believe defense team has done very well for us. Sugar till April 2022, and then if you can check my message, is the railway theme.
right? So railway theme we have been playing from August or September onwards, and in November I have clearly stated that now this theme is picking the steam, and you've seen the very good move in RVNL, whatever stocks, Aircon, which are related to railway. And there was one more tweet I have shared around the Diwali, that now PSUs, the time has came, and you've seen a very good move in PSU bank and PSU companies, and this is just a start. So I would say 2023 will be a year for three, four sectors. First is PSU. PSU may you need to be very selective. I'm not a fond of banks. Banks are trading ideas for me. Because the business of banks, depend upon the business of other industries or the industries which they are catering, right? So I generally think about the PSU companies. So I will invest in those PSU companies which have more of domestic exposure in 2023, जिनका डोमेस्टिकली या डोमेस्टिक एक्सपोजर ज़्यादा है, वही कंपनीज पे ध्यान रखना है. इंटरनेशनल एक्सपोजर कंपनीज को कम नज़र में रखना है, या कह सकते हैं कि आई वुड अवॉइड. मतलब दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, राइट? बाकी आप अपने हिसाब से चेक करिए उनको. नंबर वन. नंबर टू, द सेक्टर नंबर टू इज योर विच आई थिंक इज द सेलेक्टिव आईटी कंपनीज. नॉट ऑल, सारी नहीं होंगी. स्पेसिफिकली द कंपनीज विच हैव मोर ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर जिनका है, उनको तो अवॉइड ही करूंगा मैं. बट डोमेस्टिकली जिनका बिजनेस ऐसा है जो चलेगा, मतलब इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग, लाइक अगर मैं बोलूँ तो आपको ओटीपी हमेशा आता रहेगा 23 में 24 में. अब कौन सी कंपनी बेचती है, आप ये सोचने का है, राइट? तो ये सब कंपनीज पे ध्यान देने का है. नंबर थ्री सेक्टर इज फार्मा, राइट? फार्मा में भी अगेन डोमेस्टिक जो फार्मा कंपनीज है वहां पे आई विल फोकस मोर, जिनका डोमेस्टिक बिजनेस है. प्लस ग्लोबली अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है, इफ आर गेटिंग दे आर वेरी क्लोज टू एनी ड्रग और प्लांट अप्रूवल, वो देखने का है. और जिनका अच्छा खासा हिस्ट्री रहा है पिछले 4-5 साल में या पिछले 6-8 साल में, कोई कंप्लाइंस इश्यू नहीं रहा हो, तो वो कंपनीज पे. एंड एफएमसीजी ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट आई बिलीव वो कंपनीज जिनका प्रोमिनेंट शेयर है उन प्रोडक्ट्स में जिसके बिना मंदी हो तेजी हो आप जी नहीं सकते हो, राइट? वो कंपनीज का दबदबा रहेगा. एंड सेलेक्टिव केमिकल कंपनीज. इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा सेक्टर रहेगा जहाँ पे ज्यादा स्ट्रीमिंग रहेगी. हाँ, इट इज गोइंग टू बी एन इलेक्शन ईयर. नेक्स्ट ईयर काफी इलेक्शंस हैं, तो हो सकता है मीडिया स्टॉक्स को थोड़ा हवा मिले, सेलेक्टिव मीडिया स्टॉक्स को. तो मतलब दो स्टॉक्स विल बी अ ट्रेडिंग आइडिया और ट्रेडिंग फॉर ट्रेडिंग ओनली फॉर मी. तो ये सब कंपनीज पे ध्यान देना और सेक्टर्स पे ध्यान देने का है. और मतलब दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, मैं ध्यान दूंगा. बाकी इट्स अप टू यू व्हाट यू चूज. बाकी सेगमेंट्स में आई विल सी अ वेरी बिग चैलेंज. एंड एज फार एज ग्राउंड रिपोर्ट इज कंसर्न्ड, आप मान के चलिए, आप ग्राउंड में जाके चेक करिए. डोंट बिलीव ऑन माय वर्ड्स, राइट? आप एयरपोर्ट्स की भीड़ को मत देखिए, बट आप ये कंपनी से जाके पता करिए कि हाउ व्हाट आर द चैलेंज दे आर फेसिंग ऑन टॉप लाइन ग्रोथ, राइट? टॉप लाइन ग्रो करने के लिए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, बॉटम लाइन की तो बात की बात है. या टॉप लाइन ग्रो कर रही है, बॉटम लाइन नहीं कर रही है, खर्चे बढ़ गए हैं इतने ज्यादा, तो उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? ये दो चैलेंजेस हैं. सो अभी 2 महीने से 3 महीने से दो चैलेंज है. बहुत सारी कंपनीज टॉप लाइन ग्रो कर पा रही हैं, लेकिन बॉटम लाइन नहीं ग्रो कर पा रही हैं, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, वो चीज महंगाई की वजह से हो या जो भी था. दूसरा चैलेंज ये आ रहा है कि टॉप लाइन ही नहीं बढ़ पा रही है, राइट? अंडरलाइन डिमांड जो है सप्रेस हो गई है ड्यू टू वेरियस रीजन, राइट? खासकर रिटेल में आप देखो, इवन कार में आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी ये चीज, प्रॉब्ली इन नेक्स्ट 1 or 2 months डाउन द लाइन. तो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस इन दिस सेक्टर्स. अभी सब लोग बोल रहे हैं कि रिटेल में शॉपर स्टॉप हो गया, ये हो गया, ये इंटरनेशनल सब कर रही है. आपको नंबर्स बड़े सप्रेस मिलेंगे प्रॉब्ली जनवरी ऑनवर्ड्स में, राइट? ये मतलब 2022 वाज अ वेरी आइकॉनिक ईयर फॉर मोस्ट ऑफ द रिटेल कंपनीज. बड़े एक्सेप्शनल और कह सकते हो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स ज्यादातर ब्रांड्स ने, ज्यादातर कंपनीज ने करे हैं रिटेल में. तो उसका रिफ्लेक्शन आपको प्राइसेस में दिख गया था, और अच्छा खासा पैसा भी बना है.
काबुची मिर्जा हो या बहुत सारी कंपनीज हैं, बट मेरे को लगता नहीं कि वो सब चीजें आपको 23 में देखने को मिलेंगी. दीज कंपनीज आर नॉट गोइंग टू ग्रो सिग्निफिकेंटली अबव देयर 2022 बेस. ये आप लिख लेना कहीं पे भी, ठीक है. प्रॉब्ली अगर मैं ढंग से बोलूँ तो H1 में तो नहीं हो पाएगा. H1 में लास्ट ईयर का बेस या इस साल का बेस बहुत हाई है, उसमें तो नहीं. मतलब ठीक है, 10 में से एक ब्रांड या दो ब्रांड ग्रो करेगा अलग बात है, लेकिन 10 में से 8 ब्रांड जो है उनको बड़ी दिक्कत होगी ग्रो करने में. हाँ, फ्लैट रह सकते हैं या डिग्रो कर सकते हैं, इसके चांसेस बहुत हाई हैं. रेस्ट आई विल टेल यू अराउंड द न्यू ईयर, तब तक और डेटा आ जाएगा. तो नवंबर से आई हैव बीन टेलिंग यू, और नवंबर के नंबर आप जाके चेक करो ग्राउंड इन्फॉर्मेशन, और दिसंबर में भी सेम नंबर आ रहे हैं. Go to any retailer, मतलब don't believe on my words. Go to any retailer and ask them कि what is happening on ground and how you are getting the consumers, whether you are growing or not. If you are not growing, what are the reasons? They will tell you, right? And then come back to me, right? Okay. I'll take all the queries, probably, right? And I'm receiving lot of request. Comfortable listening. Now I would like to invite some questions, some serious questions. Please be specific on the sectors. Don't ask me stock specific questions. I'm not the right person. जो भी हमारी बात हुई है उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछिए. I would be happy to reply. अगर आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हैं तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं. I'll try to reply. Just DM me. If you are shy to ask a question. काफी लोग को होता है कि मतलब पब्लिकली नहीं पूछ पाते हैं. It's a small phobia actually, and it's a very small phobia. Just send me a request so that I can add you in speaker panel. So whosoever has sent me the request to speak, could you send that request again? Just cancel the request and send me again. Infra team is going to do good, but be selective. So Mr. Abhishek has asked that question. I don't know what is the issue. I'm not getting the request. So can you raise your hand so that I can make you a speaker? Just received a request. Just approved. Yes, Mr. Anand. Yes, good evening, sir. Good evening, sir. I have one question regarding PSU banks. Means PSU banks has run up so fast and so much as well. And another sector which run too much in last couple of days, 2-3 days, is fertilizer sector. So is it time to get out of the PSU banks and fertilizer, or still we can ride the time? So PSU banks may, as a trader, right? It's an exit, right? As an investor, you'll get an opportunity to invest again, right? So I'm not too much bullish on PSU banks in short term, right? But as far as fertilizer sector is concerned, it is going to be a very hot sector in short term, medium term, or even in long term, right? Because there are a lot of structural changes which have happened specifically after the Ukraine-Russia war, right, for this segment, right, and probably specifically on ammonia, right, or that urea. So I guess by 2025, what government is aiming
that we're going to have that import-free structure or import-free India in fertilizer, right? In any case, so if this is the scenario, then fertilizer sector is going to do very good in medium to long term, but short term also, sector is looking good and doing good on ground as well. Okay, thanks. Yes, Mr. Stock Market Intelligence. Hi, sir. Good evening. Good evening. Sir, actually, I have just logged in to your this podcast, sir. Actually, sir, just can you tell me which are the emerging sector which you have spoken for 2023? I just want to hear it out, sir. PSUs, PSU enterprises, or you're talking about the banking and everything? matlab everything, but I'm mostly bullish on the PSU stocks which are domestically focused, or the firms which are domestically focused. Whether it is BML or a lot of stocks. Okay. I will not take the name of stocks. PSUs, pharma, IT selective, and mix of FMCG and chemical names. Okay. So, sir, generally, like if I talk about some macro factors, why because the PSUs are getting, shifting of money is moving into the PSU sectors. We generally know that, when the rising interest rates or inflations are picked up, so the money move from growth stock to value stock, right? Value stocks, yes. Right. So that's the reason, one of the reason that you are talking about pharma and all, because they are available at a very good rate as of now in compared to other growth stocks. Sir, just I have few queries. Actually, I'm a trader as well as a long-term investor. I have both separate thing, trading and investing. But the only concerning situation as of now, if I talk about the macro factors like inverted yield curves or high inflation, yesterday also Fed has read, there was a hawkish stance. So there is a concerning things which is going in my mind, like whether we should, full-fledged, like yesterday also you see gold has given a breakout, new fresh breakout, so the safest instrument. So now I need your perspective, sir. How we can be so cautious, keeping in mind like macro factors, and क्या हम पूरा इक्विटी में एक्सपोजर रख सकते हैं अभी, या हम वेट करें थोड़ा करेक्शन का इन कमिंग डेज, सर? मेरा मानना ये है कि what is my take, despite of all the actions which you have, or all the triggers which we have witnessed during last couple of days, whether it is rate hike or the expectation of the Fed, or what you said कि hawkish statement था, all in all, the main indicator is the two things. एक तो DXY index has already corrected, उसमें कोई correction आया नहीं, number one. Number two, yields में भी कोई correction नहीं आया कल के उसके बाद, या हॉकी स्टांस हो गया उसके बाद भी। यार उस दिन जो CPI हमारा कम आया था, 7.1 पे आ गया था, ड्रास्टिकली नीचे आ गया, उसके बावजूद भी यील्ड्स में करेक्शन नहीं आया। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन ऑन यील्ड्स, एंड दैट वाज अ सिग्नल कि यील्ड्स में करेक्शन आया नहीं, फेड का हॉकी स्टांस हो गया अचानक सारा कुछ। सो व्हाट इज अहेड? सो अभी ये सारा जो सही बताऊं तो, अगर ये सारा जो इन्फ्लेशन कम हुआ है, इसके दो तीन फैक्टर्स हैं, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कई बारी। पहला है क्रूड, राइट? क्रूड में 1-1.5 महीने में जो फॉल आया है उसका बहुत बड़ा योगदान है सारे देशों में, नंबर वन, बिकॉज फ्यूल इन्फ्लेशन हर जगह कम हुई है, फॉर श्योर, राइट? और जहाँ पे प्राइसेस कम हुए होंगे तो वहां और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा। हमारे यहाँ तो बिना प्राइस कम हुए अच्छा खासा हमारा CPI कम हो गया। नंबर टू, फूड इन्फ्लेशन में भी कमी आई है, बिकॉज कमोडिटीज जो हैं वो DXY जब ऊपर चला गया था तो गिर गई थी, लेकिन DXY जब नीचे आया तो उतनी नहीं बढ़ी है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, DXY जो है उसने कम से कम आप मानिए कि 8 से 9% करेक्शन शो किया है, पर गोल्ड की रैली कितनी आई है आप सोचो। लो से गोल्ड जो है वो हार्डली 5% राइज किया होगा, सिल्वर थोड़ा ज्यादा कर गया होगा, और बाकी कमोडिटीज हैं वो तो कई ऐसी हैं जो 2-3% भी ऊपर नहीं गई, बिकॉज वहां पे डिमांड नहीं है, राइट? सो दैट इज द सिनेरियो। सो अभी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि DXY नीचे आ गया तो फंड फ्लो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, या कमोडिटीज का प्राइस बढ़ जाएगा, बढ़ेगा लेकिन सस्टेन तब करेगा व्हेन डिमांड इज देयर। सो दिस इज द थिंग व्हिच यू नीड टू थिंक। आई बिलीव 2023 में DXY जो है हो सकता है एक बार वापस बाउंस बैक करे, ऊपर भी चला जाए बहुत ज्यादा और वापस गिर जाए, लेकिन दोनों सिनेरियो में DXY जो ऊपर जाए नीचे जाए, कमोडिटीज जो है वो नीचे ही जाएंगी एक बार के लिए तो, बिकॉज हो क्या रहा है, अगर DXY ऊपर जाएगा
तो वो तब जाएगा जब कोई बहुत बड़ा मैक्रो में बड़ा चैलेंज आ जाए, तो कमोडिटीज को नीचे जाना ही जाना है, और वो चैलेंज इकोनॉमिकली नीचे रहेगा। वो चाहिए अब कुछ भी उसके रिपरकशन ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर या कुछ और एशिया में हो सकता है, मैं बात नहीं करूंगा ओपनली उसके बारे में, राइट। आपको हिंट मिल चुका है उसका ऑलरेडी, तो वो सब चीजें भी शायद उस पर भी कोई डेवलपमेंट हो सकता है आने वाले 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते। थोड़ा एज एन इन्वेस्टर आपको कोशिश रहना पड़ेगा। अब कोई बोले कि नहीं ये तो चलती रहेंगी, 2 साल में ये हो जाएगा, सर देखो मैं आपको बता रहा हूँ जो डेवलपमेंट्स अभी हुए हैं स्पेसिफिकली आफ्टर यूक्रेन रशिया वॉर, हमने सप्लाई चैलेंजेस फेस किया, इतना फेस किया कि वो सप्लाई चैलेंज कोरोना में भी नहीं आया, राइट। कोरोना में जो सप्लाई चैलेंज आया वो उससे ज्यादा सप्लाई चैलेंज हमें तब आया जब यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ है, राइट। ये आपको सोचना पड़ेगा, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, हाँ। एब्सोल्युटली। उसके बाद अभी वो खत्म नहीं हुई है, यूक्रेन रशिया वॉर अभी खत्म ही नहीं हुआ है। अभी देखो वहां पे चल रहा है, वहां पे अभी कंटिन्यूसली एड आ रही है, तो कब तक चलेगा कोई नहीं कह सकता। पर मेरा मानना है कि जब तक कुछ बड़ा नहीं होता है यहाँ पे डेवलपमेंट, या जब तक इनकी कोई बड़ी ट्रीटी साइन नहीं होती, तब तक वो खत्म नहीं होएगा। और वो उसके अभी मेरे को लगता नहीं कि 2-3 महीने में कोई चांसेस है कि वो बंद हो, नंबर 1। नंबर 2, एशिया में यूरोप तो खराब था ही, इधर में रशिया और ये जो रीजन है खराब था, अमेरिका भी खराब था, लेकिन एशिया में भी चीजें खराब हो रही हैं अभी, राइट। इंडिया चाइना का रिलेशन अभी देखो इससे थोड़ा हुआ, चाइना में वो कोविड हुआ, वहां पे दिक्कतें आ रही हैं, वो लोग रेट काट रहे हैं ग्रोथ के लिए, तो मतलब चैलेंजेस आर देयर। तो यूरोप के साथ साथ अगर एशिया भी चैलेंजिंग सिचुएशन में आता है, तो आप सोचो ग्लोबल ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी जो ग्लोबल ग्रोथ सारी जो रिवाइज हुई है पिछले 6 महीने में, आप देखो ना जीडीपी कितना रिविजन आया है, 3-4 बार रिवाइज कर चुके हैं सारे ब्रोकरेजेस और ये सारे, वो सब यूरोप की वजह से करें। एशिया को तो अभी ज्यादा डिस्काउंट किया ही नहीं किसी ने भी, लेकिन एशिया में अगर कुछ खराब होता है तो उसकी डिस्काउंटिंग इससे भी बड़ी होगी, मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट। बिकॉज यूरोप में तो अभी उन्होंने वर्स्ट किया नहीं है, एक खराब सिचुएशन वो करी है, तो आगे क्या होगा, यूरोप में वर्स्ट होगा और हमारे यहाँ थोड़ा कम वर्स्ट होगा, उसको डिस्काउंट कर सकते हैं। दिस इज द पॉसिबिलिटी। देखो जब तक ये वॉर खत्म नहीं होती तब की मैं बात कर रहा हूँ, खत्म हो जाए, कोई बड़ी ट्रीटी साइन हो जाए, पीस हो जाए, तो अलग बात है, देखो, राइट। तो हमें ये नहीं सोचना कि यही होगा, हमें ये भी सोचना है कि दूसरा भी कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक कुछ होता ही नहीं है ऑन ग्राउंड, कोई ट्रीटी साइन नहीं होती रशिया यूक्रेन की या कुछ ऐसा होता नहीं, तब तक आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। और इस बार वो चीज नहीं होगी, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो मई जून में करेक्शन आ गई थी, फिर चीजें ठीक होने लगी और मतलब सेट हो गया, वो नहीं होना है। इस बार अगर एस्केलेशन होता है तो हो सकता है कि वो एस्केलेशन इतना बढ़ जाए कि उसके रिपरकशन हमें 2-4 महीने के लिए नहीं, हो सकता है यूरोप जैसी कॉन्टिनेंट को 2 साल तक झेलने पड़े, वो 2 साल तक ग्रोथ ही ना कर पाए, या हो सकता है 2 साल तक नॉमिनल मतलब बहुत कम ग्रोथ में वाले फेज में चल जाए, मतलब 2023 तो वेस्ट ही हो जाए एक प्रकार के लिए, राइट। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इक्विटी में फिलहाल मेरा मानना ये है कि मैं अगर पर्सनली सोचूंगा तो ज्यादा 60-70% ज्यादा एलोकेशन नहीं रखना है। 60-70% भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, पर्सनली मैं मानूंगा कि थोड़ा सा आपको वेट करना है। लग ये रहा है लाइक यू राइटली सेड कि वैल्यू बाय को करो चल जाएगा। देखो सर, कभी भी कुछ ग्लोबली मैक्रो में बड़ा होता है तो आप वैल्यू बाय भी लोगे, गिरेगा तो वो भी, राइट। वैल्यू वहां पे भी नहीं रहेगी, वो अंडर वैल्यूड है तो और ज्यादा अंडर वैल्यूड रहेगा, राइट। कहते हैं ना कि जब सिचुएशन खराब होती है, तो मैं एक कंपेयर करूं, 8 में आई वाज नॉट देयर इन द मार्केट, बट अगर मैं केस स्टडी की बात करूं साइकोलॉजिकली, 8 में जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स थे ना, वो और ज्यादा डीपली अंडर वैल्यूड हो गए थे, समझ रहे हो। अंडर वैल्यूड कोई चीज रहती है तो वो थोड़ा ना कि वो गिरेगी नहीं। और सेम चीज आप देखिए ना, 2020 में जो फॉल आया था उसमें बहुत सारे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड थे, जो बेचारे पहले ही 70% 60% गिर गए थे, वो और 20% मतलब और 10% गिर के 80% फॉल में आ गए थे। राइट और राइट ठीक है, उसके बाद जो लोगों ने लिया वहां से राइस, वो अलग बात है। तो ये मत समझिए कि जो अंडर वैल्यूड है वो गिरेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। अगर सिचुएशन यहाँ आपको, यहाँ पे मेरा मानना ये है कि 2023 में जियोग्राफिक सॉरी जियोपॉलिटिकली यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड। डोंट टेक 2023 सिचुएशन लाइक 2022 में जो हुआ कि वहां पे ठीक है, रशिया यूक्रेन का जो हल्ला बल्ला था वो शांत हो गया, चल रहा है, हो जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ग्रो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको फर्क पड़ रहा है। अगर आपको लगता है फर्क नहीं पड़ रहा है तो Q3 की अर्निंग उठा के देख लो, Q2 में तो इतना असर नहीं आया था, Q3 में मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव शोन अ बिग गैप बिटवीन टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ, दोनों में बहुत बड़ा गैप आया है, आप ये चेक करिए, राइट। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। जैसे अभी देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे
अपने पीक पे चल रहे हैं इंडियन मार्केट का, और द ग्रोथ पार्टिसिपेशन ऑफ द कंपनीज आर ओनली 5%। तो ये भी एक ट्रिगर है, क्योंकि लास्ट बुल रन जो 2020 का था उसमें 15 to 18% कंपनीज ने ऑल टाइम हाई का जो लेवल है, एक मतलब इंडिकेटर ले सकते हैं कि बुल रन में कितने कंपनीज पार्टिसिपेट किए थे। नाउ द ऑल टाइम हाई स्टॉक्स आर वेरी फ्यू, सो राइट। दैट कैन बी वन ऑफ द कॉशियस साइन सर, कि हमें बहुत ही सेलेक्टिव स्टॉक्स में फोकस करना है, बिकॉज इक्विटी एक टाइम तक चलती है सर। देखो, हाई इन्फ्लेशन, हाई इन्वर्टेड यील्ड कर्व, गोल्ड का न्यू ब्रेकआउट, रिसेशन फियर्स, ग्रोथ स्लो डाउन, ये बहुत सारे ट्रिगर्स है जो इक्विटी को कभी सपोर्ट नहीं करते। दो इंडियन मार्केट इज डूइंग वेल इन कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट, ग्लोबल मार्केट, इसीलिए वैल्यूएशन मिल रहा है, बट स्टिल एफआईआईज हैज नॉट कम बैक सर। सो मेरा वही था, आपने भी अच्छे से पॉइंट आउट किया कि 50-60% का एलोकेशन, वो भी सिलेक्टिव आपने, इसलिए मैंने इमर्जिंग सेक्टर सुनते ही मैंने आपको ज्वाइन किया। आई हैव लिसन यू अलॉट सर अर्लियर आल्सो, बीच में मैंने ब्रेक ले लिया था, तो दैट वाज द रीजन कि कौन से सेक्टर में अभी फोकस रहे। यू हैव ऑलरेडी मेंशन इट। तो सर थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन, यू सजेस्ट सम डाइवर्सिफिकेशन, राइट सर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? मेरा मानना ये है कि कुछ भी एस्केलेशन होता है जब मतलब आने वाले 2-3 महीने में थोड़ा ध्यान रखिए। मतलब देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि मेरा पर्सनल व्यू बताता हूँ। अभी अगर मैं ये बोल दूं कि आप अपना एलोकेशन कम करिए, तो राइट। इसको डाइजेस्ट करना बहुत बड़ी बात है एज एन इन्वेस्टर, एज एन ट्रेडर एज वेल, कि नहीं मैं तो पैसा बना के मानूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 1 महीने 2 महीने ज्यादा पैसा नहीं बनाओगे, ठीक है, या नहीं पैसा नहीं भी बनाओगे, राइट, तो आपका आपका इंश्योरेंस बहुत सही है, लेकिन आपने कोशिश करी और कोई ऐसा ट्रिगर आ गया जो दिख रहा है, राइट, तो आप पैसा बना के भी बहुत बड़ा पैसा खो दोगे। मतलब हो सकता है कि आप 5% 8% बना लो ट्रेडिंग में कैसे भी, लेकिन पता लगा कि आपका पोर्टफोलियो 20% घुस गया नीचे। एक मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, तो आपने क्या कमाया, है कि नहीं? उसको रिकवर करने में आपको इतना टाइम लग जाएगा, 3-4 महीने 5 महीने, हो सकता है रिकवर ना भी कर पाओ काफी टाइम तक, या 8 महीने तक ना कर पाओ। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। फायदा क्या होगा आपको? आपका कैपिटल अगर वहां पे चला गया, पूरा स्टक हो गए, तो आप वो नहीं कर पाओगे, राइट? तो ट्रेडर, बीइंग अ ट्रेडर एज वेल एज शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टर, आपको ये सोचना है कि पैसा बने ना बने, बट कैपिटल बचना बहुत जरूरी है, राइट? स्पेसिफिकली जब अनसर्टेनिटी थोड़ी बढ़े, राइट? आपका अभी देखो ना कि निफ्टी कितना चला है पिछले 2 महीने 3 महीना में, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स उस स्पेस से चला ही नहीं है, नहीं चला राइट? सर। कोशिश करी, मतलब 1-2 हफ्ता ऐसा लगा कि स्मॉल कैप ब्रेकआउट करेंगे। मैं भी उस कैंप में था जब 5-6 दिसंबर तक लग रहा था कि अब हाँ, अब स्मॉल कैप इंडेक्स में ब्रेक आएगा, लेकिन आया नहीं। आज देखो ना, उसने अपना दूसरा लास्ट हाई जो था 180, वो 2 पॉइंट से रह गया, आज वहां से मुड़ गया पूरा, राइट? और अच्छा खासा सिग्निफिकेंट बेरिश एनगल्फिंग उसने बना दिया। अभी कंटिन्यूशन होता नहीं होता है वो पता लग जाएगा 1-2 सेशन में, 3 सेशन में मैक्सिमम। और 3 सेशन में अगर हमने वापस उस हाई को नहीं काटा जो भी लगा है आज, तो आप मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट जो है वो बन जाएगा एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में आपके लिए, राइट? और नीचे आता है तो फिर धीरे धीरे स्टॉक्स आने लगेंगे, और मैंने क्लियरली लिखा है कि जहां पे मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है वो तो फिजल आउट होने में टाइम ही नहीं लगेगा। हो सकता है कल या परसों में हो जाए। जो स्टॉक्स में सिर्फ अभी लग रहा है कि ब्रेकआउट आएगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो कभी भी घट सकता है। लेकिन जिनमें ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, चल चुके हैं, वहां पे अगर आप हो, तो वहां पे आप अपने प्रॉफिट को रखने की कोशिश करिए या बुक करने की कोशिश करिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा कर रहा हूँ। बट ऑल इन ऑल, जो अपना मेन क्वेश्चन आपने पूछा था कि इक्विटी में एक्सपोजर रखना नहीं चाहिए, रखिए, लेकिन उतना एक्सपोजर नहीं रखना है जितना आपको जनरली एक बुलिश सिनेरियो में रखना चाहिए, ये मेरा मानना है, राइट? 50-60% मैं चाहूंगा अभी रखूं, और कोई क्वेश्चन सिग्नल आए तो शायद उसको और कम कर लूं, ये मेरी पर्सनल राय है, राइट? एब्सोल्युटली सर। नहीं, नहीं, आपने बहुत अच्छे से कहा सर, क्योंकि ना क्या होता है, इक्विटी इन्वेस्टर, मैं भी इक्विटी इन्वेस्टर हूँ, तो जनरली इट इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट कि यार मार्केट से ना पैसा उस लेवल का नहीं बनेगा जो 20-22 का बना, बट वी हैव टू बी ओपन विथ एवरी साइड टू एक्सेप्ट द रियलिटी, क्योंकि सिचुएशंस आर नॉट इन आवर फेवर। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पीपल आर लिसनिंग ऑल्सो, एंड द होल आइडिया इज टू ओपन विथ ऑल दी थिंग्स, क्योंकि आपने कहा कि 5% कमा लोगे, 20% पोर्टफोलियो नीचे चला जाएगा, तो ये चीज बहुत डिफिकल्ट है सुनने के लिए कि इक्विटी में अभी थोड़ा कॉशियस रहना है। पीपल विल से कि यार निफ्टी 24,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट देयर आर सम ट्रिगर्स, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर। एवरीवन इज लिसनिंग दैट अमेजन हैज ले ऑफ 20,000, मेटा हैज ले ऑफ 10,000 पीपल। आप एक चीज समझो, व्हाई दे आर डूइंग ले ऑफ, व्हाई दे आर नॉट एक्सपैंडिंग?
because they pay to the analyst, they can forecast the future 10 महीने 12 महीने में क्या होगा, they are already discounting it. One of the trigger, ये तो simple basic understanding होनी चाहिए. दूसरा sir, when I visit the banks, I interact with the employees. Now the bank has totally moved to the different next level में वो deposits पे focus कर रहा है. I mean generally banks को loan में फायदा होता है and they are focusing on FDs and deposits. Why they are asking? Because they understand कि भाई recession आया ना, तो हमें तो अपना deposits को maintain करके चलना है. लोन कम जाएगा क्योंकि दे अंडरस्टैंड लोन अभी लेगा नहीं कोई, इन्फ्लेशन इतना हाई है, ईएमआईज इतने हाई है. So these are all small triggers, one can understand it, and we should be open with all the perspective. पैसा बनाना है एंड सर को मैं सुनते रहता हूँ, आप लोग भी सुनो. ही गिव्स एवरीथिंग. देखिए अभी उन्होंने ये नहीं बोला कि एकदम इक्विटी में डालो, इक्विटी में पैसा बनेगा. सो दिस इज बेस्ट पार्ट दैट आई ऑलवेज कम अक्रॉस यू सर. देखो ऐसा है, यू आर राइट कि जो ले ऑफ हो रहा है उसको उसको लोग सुन रहे हैं, बट दे आर नॉट रिएक्टिंग टू दैट मच एक्सटेंट जो होना चाहिए, राइट. तो यू आर राइट कि ले ऑफ क्यों कर रहे हैं वो समझना जरूरी है, और मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ पिछले महीने, राइट. कि ले ऑफ हो रहा है तो मतलब दे आर नॉट शॉर्ट टर्म मीडियम, मतलब दे आर थिंकिंग अबाउट द मीडियम टर्म कि होगा क्या भाई, है ना. तो अभी अगर वो ले ऑफ कर रहे हैं तो अभी तो चलो ठीक है, वो लोग कुशन है उनके पास कि काम निकाल लेंगे, लेकिन दे आर थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट 6 मंथ और 8 मंथ और इवन 1 ईयर डाउन द लाइन कि भाई वो टाइम पे सिचुएशन बहुत ज्यादा एस्केलेट होगी, तो हम क्या करेंगे. और मैं बार बार ही बोलता हूँ, बिजनेस का बढ़ने का मतलब है आपकी हायरिंग जो डेटा है उसमें ग्रोथ आता है. मतलब जब बिजनेस बढ़ रहा है तो हायरिंग पिकअप होना शुरू हो जाएगा. आपको आप ग्राउंड में जाओगे, आप बोलोगे यार मेरे को बंदा चाहिए, या मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस बढ़ रहा है और ठीक है एक समय. लेकिन जब डाउन टर्न आता है साइकिल का किसी का भी, तो आपको हमेशा लोग बोलेंगे यार हो नहीं रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, छटनी करनी पड़ रही है. मतलब एम्प्लॉय को निकालना, मतलब एम्प्लॉय इज अ वेरी बिग एसेट फॉर ईच एंड एवरी कंपनी. आईटी कंपनी के लिए तो स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, आईटी कंपनी के लिए सबसे मतलब आईटी कंपनी के लिए एसेट में सबसे ऊंची अगर मान्यता है, या यू नो इफ यू टॉक अबाउट द लेवल, तो वो एम्प्लॉय का है, राइट. एंड उसी को वो लोग निकाल रहे हैं, प्रोबेशन वालों का जो भी है चटनी कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं दे आर थिंकिंग अबाउट द बिग चैलेंज इन नेक्स्ट 6 मंथ्स और प्रॉब्ली इन द 8-9 मंथ्स, राइट. फेड भी आज हॉकिश था, सबको लगा एकदम से कि यार अब तो कर्व जो है वो हो गया, लेकिन मेरा मानना ये है जो भी चीजें हैं इस चीज को मार्केट ने डिस्काउंट करना शायद शुरू कर दिया है. जो भी अभी 2-3 सेशंस में पैटर्न बने, कितना करेगा ये तो टाइम ही बताएगा. 1-2 हफ्ते में पता लग जाएगा कि 5-7% जो मैंने मेंशन किया है कि 3 से 5% होना चाहिए, 6% हो जाएगा जैसे था, वहीं तक करेगा तो हम देखेंगे. लेकिन वहां से हो सकता है बाउंस बैक भी आ जाए, सिनेरियो में चेंजेस भी हो, थोड़ा इंप्रूवमेंट भी हो. लेकिन ज्यादा हुआ तो आई अपडेट, राइट. तो ऑल इन ऑल अभी तो व्यू यही है कि अभी फेड का हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद मार्केट रैली नहीं किया, राइट. तो इसका मतलब जो मार्केट ने सोचा था वो ऑलरेडी हो गया है, राइट. एक्सपेक्टेड लाइंस पे था और मार्केट ने शायद उसकी रैली दे दी है, आपको नवंबर में दी हो कभी भी हो. अभी मार्केट इज लुकिंग फॉर न्यू ट्रिगर्स जो नहीं मिल रहे हैं मार्केट को बिल्कुल भी. अब उसमें 10 बातें आती हैं, एफआईज नहीं है, डीआईस सपोर्ट कर रहे हैं, डीआईस कैश नहीं है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें चलती रहेंगी. कैश को देखा जाए तो अभी तो एनएवी का प्रॉपर रैली भी चल रहा है बहुत सारे सेगमेंट में, सब क्योंकि सबको अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है ना दिसंबर के एंड में कि एनएवी कैसा किया. बट ऑल इन ऑल दिस इज नॉट द टाइम. पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं पर्सनली, दिस इज नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टू मीडियम टाइम. मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हो 3-4 महीने में कि कुछ ठीक ठाक पैसा बन जाए, खासकर 20-25% रिटर्न बन जाए या 15-20% मिल जाए, वो थोड़ा मुश्किल होगा. ठीक है, मतलब मार्केट गिरता है तो आपने ओवरसोल्ड लेवल पे कोई स्टॉक ले लिया, 5-7% दे दिया ट्रेडिंग में, तो ट्रेडर का गेम है, वो आप प्ले कर सकते हो. बट ऑल इन ऑल यू नीड टू बी वेरी वॉचफुल. एक टाइम एक ट्रिगर की 2-4 ट्रिगर की मैं वेट कर रहा हूँ, अगर वो आते हैं तो शायद एक टाइम आएगा जिस टाइम पे स्ट्रेस टेस्ट, मेरी बात याद करो, आप मेरा ट्वीट जाके चेक करो, मई में मैंने लिखा था स्ट्रेस टेस्ट, वो शायद फिर से हो और इस बार बड़ा होगा. इस बार वो होगा कि सबको लगेगा कि यार मई जून में जो फॉल आया था शायद वैसे रिवर्स हो जाएगा, लेकिन
जिस लेवल पे आप बाय करोगे और आपको लगेगा रिवर्स होगा, एक बार रिवर्स होगा लेकिन उसके बाद और तेजी से गिरेगा, ये हो सकता है सिनेरियो बेसिस ऑन द मैक्रो डेवलपमेंट्स आई एम सीकिंग इन नेक्स्ट प्रॉब्ली 3 to 5 months, ये आप मान के चलिए, राइट। और ये सब ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो आ रही है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन कुछ सेक्टर में बुलिश है पर ज्यादातर सेक्टर में न्यूट्रल टू बेरिश है, आप मान के चलिए। मतलब समहाउ पीपल आर थिंकिंग कि क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा 2022 में बेस बहुत अच्छा रहा है, हम बहुत सारे सेक्टर में अच्छा किया है टू बी वेरी फ्रैंक, बट समहाउ अभी धीरे धीरे ये हो रहा है 2-3 महीने से कि टॉप लाइन अच्छा कर रही है, बॉटम लाइन नहीं कर पा रही, खर्चे बढ़ गए हैं। और नवंबर के बाद तो सिनेरियो ये हो गया है कि टॉप लाइन भी अच्छा नहीं कर रही है और बॉटम लाइन भी अच्छा नहीं कर रही है। जो मेरे को लग रहा है शायद सिनेरियो रहेगा आपका आने वाले 3 से 6 महीने में कि टॉप लाइन भी गिरेगी और हो सकता है बॉटम लाइन भी गिरे। मेटल्स का काफी लोग बात कर रहे हैं। मेटल्स में देखो ऐसा है, प्राइसेस बढ़ेंगे डीएक्सवाई गिरने से, लेकिन डिमांड अगर नहीं रहेगी तो आप प्राइसेस को ऊपर कैसे रखोगे, वहां पे फिर डीएक्सवाई का रोल रहेगा नहीं। तो फॉर एग्जांपल कॉपर का प्राइसेस बढ़ गया, कॉपर ने रैली कर दिया डीएक्सवाई के गिरने से, और डीएक्सवाई सपोज करो नहीं बढ़ता है ना गिरता है, सेम लेवल पे रहता है, और कॉपर की डिमांड घट जाती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम हो जाती है सपोज करो, तो फिर वहां पे आप डीएक्सवाई को ब्लेम थोड़ा करोगे, वहां पे मैक्रो फैक्टर्स जो है वो प्ले करेंगे और कॉपर के प्राइसेस को तोड़ेंगे। तो हमेशा हमने ये नहीं देखना है कि डीएक्सवाई गिर जाएगा कॉपर बढ़ जाएगा तो चलो जी रैली आ जाएगी। कंपनी को धंधा करने के लिए मांग चाहिए, ठीक है। सर आपने पीएसयू के बारे में कहा कि दिस कैन बी द सेक्टर फॉर 2023। सर जैसे क्रूड के रेट्स अभी गिरे हैं, दे आर एट 7 month लो, रबर के रेट्स गिरे हुए, सो कैन वी फोकस ऑन लाइक इंडियन oil companies like BPCL, HPCL and all these companies for long term for 2023 perspective? यदि क्रूड में बाय है, बाय ये मतलब ये जो ऑयल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या ऑयल की जो हैं, ये इतनी कर गई हैं। जैसे आईओसी आप देखो, मतलब कहाँ उसका मतलब 150-200 के लेवल होता था कई से कुछ साल पहले, आज वो 60 रुपीज 70 रुपीज आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे मतलब देखो ये हो सकता है कि रिस्क रिवॉर्ड बड़ा फेवरेबल है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, आपने ले लिया आज की डेट में 70 रुपया 75 रुपया पे, तो अगर गिर भी गई तो ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि ये 60 55 50 के ऊपर जाएगी, और चली भी गई ना किसी कारणवश कोई फॉल आ गया तो टिकेगी नहीं वहां पे। मतलब इतना भी ज्यादा मतलब इसमें इसमें वैल्यू इतनी ज्यादा है कि मतलब 50-55 के नीचे मेरे को लगता नहीं कि ये सब कंपनी, मतलब मैं एक एक स्टॉक का मैंने एग्जांपल दिया है कि जाएगी, राइट। तो वैल्यू तो है और बहुत ज्यादा है, तो जब बहुत ज्यादा वैल्यू होती है तो फॉल में वो चीज गिरती है, लेकिन उतनी नहीं गिरती है कि वो वहां पे सस्टेन करे। कोई भी फॉल आ गया तो वो अगर गिरेगी तो वहां से रिकवरी बहुत फास्ट आएगी। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर ऐसी कोई अंडरवैल्यूड बहुत सारी कंपनीज हैं या सेक्टर्स हैं, तो आप आज की डेट में 30-40% 50% आपका अपना पैसा एलोकेट कर सकते हो। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, राइट। और जब लगे कि वो फॉल आ गया बहुत बड़ा, नहीं आया तो ठीक है, ऊपर की तरफ जब बढ़े तब ले लेना। और अगर आ भी गया तो ये ज्यादा गिरेंगे नहीं, राइट। और गिर भी गई तो जैसे मैंने बोला सस्टेन नहीं करती है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, राइट। तो गिर गई तो वहां पे अपना जो रेस्ट आपका जो मनी है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सर तो ये व्हाट तभी अबाउट करना है जब रबर? मीडियम टर्म भी हो। राइट राइट, व्हाट अबाउट रबर इंडस्ट्री सर? जैसे अभी अपोलो टायर्स का मैनेजमेंट कमेंट्री है कि दे आर सेइंग कि जिस तरह से रबर्स के इंटरनेशनल रेट्स गिरे हैं, सो Q3 में दे आर एक्सपेक्टिंग देयर ईपीएस विल ग्रो बाय 15 to 18, वो रॉ मटेरियल कॉस्ट उनका सेव हो जाएगा बोल रहे हैं। तो कैन वी फोकस ऑन बालाकृष्णन लाइक स्टॉक्स जो काफी करेक्ट हो चुके हैं, मतलब अभी थोड़ा सा बिकॉज ऑफ हाई क्रूड एंड हाई कमोडिटी राइस, जो रेट्स ऊपर थे अब वहां पे सॉफ्टनिंग दिख रहा है, तो कैन वी फोकस देयर आल्सो सर? हाँ वो देखो कमोडिटीज जहां जहां गिरी है ना, जहां जहां पे प्राइसेस कमोडिटीज के गिरे हैं, राइट मतलब बाय एनी रीजन, तो वहां पे आपको अर्निंग्स में फर्क आता हुआ दिखेगा, मतलब मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे, सारी चीजें। बट थोड़ा सा मतलब ये ट्रेडर पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो ठीक होगा। इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से आपको ये देखना है कि ठीक है प्राइसेस गिर गए हैं तो उनका अर्निंग में आप जैसे आपने बोला 15 से 18% ईपीएस ग्रो कर जाएगा तो Q3 में, लेकिन Q4 में अगर डिमांड नहीं रहेगी टायर की, सपोज करो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वही ईपीएस जो है वो गिर जाएगा, या कह सकते हो कि नहीं ग्रो करेगा, राइट। तो राइट एज एन इन्वेस्टर मीडियम टर्म में आपको को ये देखना है कि वो डिमांड रहेगी नहीं रहेगी, बिकॉज डिमांड इज एवरीथिंग। आप चार्ट पे कितना देख लो, राइट। मैं तो आपको बोलता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि चार्ट पे सब दिख जाता है, मैं कहता हूँ आप चार्ट से पहले डिमांड का चार्ट देखिए, ग्राउंड पे उसकी डिमांड है कि नहीं, वो आपको 6 महीने की प्रोजेक्शन पहले बता देगा, राइट।
तो वहां पे अगर डिमांड का चार्ट बोल रहा है कि 6 महीने लोग बुलिश हैं डिमांड में, उसकी डिमांड बहुत अच्छी है, या उसमें बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, जैसे मैंने बताया था आपको रेलवे का या डिफेंस का या बहुत पहले शुगर सेक्टर का, ये 3 सेक्टर सबसे बड़े प्ले मेरे लिए पर्सनली रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे आप पैसा लगाइए, राइट। उसके बाद चार्ट में अपना आप वो धीरे धीरे आ जाता है, लेकिन डिमांड में आपको लग रहा है, ग्राउंड इन्फॉर्मेशन चेक करिए कि डिमांड में लग नहीं रहा कि 6 महीने कोई बढ़ोतरी ज्यादा आएगी, तो वो में आप मीडियम टर्म के लिए पैसा मत लगाइए, उसमें आप ट्रेडिंग करिए, कॉशियसली 5-7% रिटर्न लीजिए और निकलिए, ये चीज है। सर और लॉन्ग टर्म में जिसको मल्टीबैगर रिटर्न पाना है, तो उसको ये लेवल पे तो मैं मानूंगा नहीं कि इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको वेट करना पड़ेगा एक सिग्निफिकेंट करेक्शन के लिए। देखो, लोग कुछ भी बोल लें, सीजन इन्वेस्टर हो चाहे कुछ भी हो, जब तक मार्केट में करेक्शन नहीं आई है कोई अच्छी खासी, मतलब जब तक मार्केट 15-20% नहीं करेक्ट करा है, या 10 से 15% निफ्टी ने करेक्शन नहीं दिया है, या स्टॉक्स ने 20-30-40% करेक्शन नहीं दिया है, तब तक लोगों को मल्टीबैगर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये आप लिख के ले सकते हो, बात क्लियर कट है, राइट। कोई कुछ भी बोले, बाकी ठीक है, मतलब जिनका लॉन्ग टर्म गोल रहता है, लेट से 8 से 10 साल का, या तो वो सिप करके इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक एलोकेशन के साथ कि भाई मेरे को 3 साल में 4 साल में इतनी क्वांटिटी इकट्ठी करनी है एक अच्छी कंपनी में, और उसके बाद छोड़ देना है 10-12 साल के लिए, वो अलग स्ट्रेटेजी है, वहां पे आपको एक CAGR मिल जाएगा। बट मल्टीबैगर जो 5 गुना 10 गुना जो स्टॉक्स होते हैं, वो आपको तभी मिल पाएंगे जब आप उस स्टॉक्स का एवरेज सही बाय करें, मतलब उस टाइम पे बाय करें जिस टाइम पे दुनिया ना बाय कर रही हो, या करेक्शन आ गया हो, या स्ट्रेटेजिकली इस तरीके से बाय करें, जैसे आपको अगर आज की डेट में 1 लाख रुपए लगाना है, तो आप आज 20,000-30,000 ही लगा रहे हो, 70,000 नहीं लगा रहे हो। 70,000 आप लगाओगे 15% करेक्शन के बाद मार्केट में, या उस स्टॉक में हो सकता है 30-40% करेक्शन है तो लगाओ, और उसके बाद ही आपको 3-4 साल में वो मल्टीपैकर रिटर्न दे पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब कितना भी कोशिश कर लो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। सर तो राइट कंटिन्यू सर प्लीज। हाँ, तो 2020 जरूरी नहीं 2020 जैसा फॉल आए तभी आपको बोले, लेकिन मेरा मानना है कि सिग्निफिकेंट करेक्शन जब तक मार्केट में नहीं आता है, तब तक आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनाने के लिए कभी भी स्टॉक जल्दी से मिलेंगे नहीं। आप मीडियम टर्म में ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हो अच्छा खासा, लेकिन मल्टीबैगर रिटर्न नहीं मिलेगा आपको, राइट। सर दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। लाइक अभी सारे लोग न्यूज देख रहे हैं, न्यूज पेपर पे आ रहा है एयरलाइंस में दिल्ली जैसे इंदिरा गांधी पे 3.5 आवर्स पहले आने के लिए बोल रहे हैं, होटल्स आर सोल्ड आउट। So so what is your take on hotels and QSR sectors? Because revenge consumption is at the peak. Hotels are sold out. Q3, Q4 में can we expect these companies to deliver good, quarterly results, sir? देखो, पीक आपने एक वर्ड यूज करा, तो पीक हो चुका है, मेरा मानना ये है, और वो इसलिए हुआ, यू आर राइट, रिवेंज नहीं है वो, ये था कि सो व्हाट हैपेंड आफ्टर कोरोना लास्ट ईयर, कि जो लेजर ट्रेवल था वो स्टार्ट हुआ, राइट, एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर ओमिक्रॉन वेव दिस ईयर, Q1 मतलब मार्च के बाद अप्रैल से जो बिजनेस ट्रेवल था वो स्टार्ट हुआ, राइट। तो अभी होते मतलब बहुत सारी कंपनीज ने, मैं अगर सी बताऊं तो जुलाई में स्टार्ट किया है, जून जुलाई में, आते हम लोग उस मोड में आ गए जो प्री कोविड था। तो अभी बिजनेस ट्रैवल जो है पिछले 4-5 महीने में बहुत पिकअप किया है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर प्लस बिजनेस ट्रैवल, राइट। पर मेरा मानना ये है कि मैक्रो कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होता है, सो दीज आर द सेक्टर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, लेजर ट्रैवल तो बंद ही हो जाना है। मैक्रो मतलब अमेजन में आपने बोला कि इतने 1000 लोग को छटनी हो रही है, अभी आपको लगता है कि वो सब लोग जो हैं वो आने वाले 6 महीने में ट्रिप प्लान करेंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। तो कंज्यूमर मतलब जो डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जो सेक्टर्स आते हैं, अपैरल हो गया, बहुत सारी, मतलब जो भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो तो कट ऑफ होनी है ना उन लोगों की जिनकी छटनी हो रही है। इवन उन लोगों की भी होनी है जिनको एक डर रहेगा कि यार नौकरी ना चले जाए, या मैं थोड़ा इन महीने में कॉशियस रहूं, नंबर 1। नंबर 2, बिजनेस ट्रैवल भी कम होएगा, तो क्या होगा कि
सपोज करो आप छटनी कर रहे हो, है ना, तो आप एक कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, तो हो सकता है आगे और ज्यादा मैक्रो चैलेंजेस आए, तो आप अपने एम्प्लॉयज को बोलो कि भाई ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है, आपको कोई मीट करना है क्लाइंट के साथ, कुछ भी करो आप जूम मीट पे कर लो ना, जैसे कोविड पे किया था, राइट। डोंट ट्रैवल एंड स्पेंड अननेसेसरली, कि आप जाओ और होटल में भी रुको 5 स्टार में, और आपका एयरलाइन का भी आने जाने का लगे, तो वो भी उसमें भी कट ऑफ होएगा, और उसका मैं नाम नहीं ले सकता, उसकी बातें अभी से शुरू होने लगी हैं। मतलब आई वाज इन द इवेंट कपल ऑफ वीक्स बैक, जहाँ पे मैंने कॉस्ट कटिंग का एक वो देखा, मतलब जितने लोग को लोग इनवाइट करते हैं उतने लोग को इनवाइट ही नहीं किया, राइट। और बहुत सारे कॉस्ट कटिंग इफेक्ट मेजर लिए गए, तो मैंने पूछा ऐसे जनरली कि भाई ये क्यों हुआ, पिछले साल तो था नहीं, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि ग्लोबल कॉल है, कि वी नीड टू बी कॉशियस इन नेक्स्ट 4-5 मंथ्स, और थोड़ा कॉस्ट को कट करना, रीजन बिंग हमने उन्हीं को इन्वाइट किया जिनको आना चाहिए, अननेसेसरली उनको इन्वाइट ही नहीं किया। तो मैंने कहा ये तो अगर आगे आगे बढ़ता है, तो वो बोलेंगे कि अगर आगे बढ़ता है तो आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, मतलब जब वापस हुई मीट होगी, हो सकता है वो मीट में उस मीट को वर्चुअली कर दिया जाए, राइट। तो ये सारे मीन्स होने हैं शायद, अगर मैक्रो चैलेंज बढ़ता है सारी चीजें, एंड इफ दिस इज द सिनेरियो, तो होटल के लिए, टूरिज्म के लिए इट इज गोइंग टू बी ए चैलेंजिंग पीरियड, मेरा मानना ये है। एंड इफ यू आर सेइंग कि अभी उनमें अच्छा बिजनेस हुआ है, मेरे को लग रहा है कि ज्यादातर होटल और इस सब स्टॉक्स में ऑलरेडी वो चीज रिफ्लेक्टेड है, मतलब अर्निंग्स में उनके, और वो चल गए हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत और चल जाए, बट जनवरी से लेकर मार्च के क्वार्टर में आपको उतना बिजनेस नहीं मिलेगा जितना पिछले साल मिला था, राइट। कुछ स्टॉक्स को छोड़ के बाकी स्टॉक्स में हो सकता है वो ना मिले। और वेडिंग सीजन भी वैसा इस बार फीका रहा है, पिछले साल वेडिंग सीजन बहुत अच्छा था, नवंबर दिसंबर वाला, इस साल तो बहुत फीका रहा है, आप ग्राउंड चेक कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मैक्रो डेवलपमेंट कुछ नेगेटिव हुआ तो हो सकता है ये सेक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो। ये तो मतलब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आते हैं आप, तो कभी भी कट ऑफ हो सकती है। जब भी मंदी आती है तो हम क्या कट ऑफ करते हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग सबसे पहले कट ऑफ करते हैं, तो ये सब उसमें आते हैं। Yeah, you are rightly said, sir. Demand are going to get slow, and that's the reason, HCL का भी आप कमेंट्री सुनोगे, 10% वो गिरा था, 7% कमिंग अहेड डेज वो ग्रोथ उसकी स्लो होनी है, बिकॉज इंटरनेशनली वो डिमांड स्लो दिखा, क्योंकि कल सर फेड ने 50 बेसिस का तो रेट हाइक किया, साथ में उसने बोला कि 25-25 बेसिस करके 3 बार और रेट हाइक करेंगे। सो दे आर टॉकिंग अबाउट 6% काइंड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी जिंदगी में यूएस ने सस्टेन नहीं किया 4-5 पे। तो Right. मुझे तो सर ये भी लगता है कि यूएस इज लुकिंग फॉर 10% ऑफ डेट सेल, अभी वो 10% डेट अपना बेचना भी चाहते हैं, बायर मिल नहीं रहे उनको। So there are so many trigger points. I am not totally bearish, but I am aware of every incident. Though I am participating in PSUs rallies, fertilizer subsidies on the card. काफी सारे स्टॉक्स है जो इंफ्रा के हैं, दे आर गिविंग मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स. So money is flowing into value and deep value buying kind of a sector, sir. Right. Right. Thank you so much, sir. Thank you so much. देखो वो रहेगा अंडर वैल्यूड, जो डीपली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है वहां पे पैसा जाना है, बट ये है कि मैक्रो कोई भी चैलेंज आया बड़ा ग्लोबली तो गिरेंगे वो भी, पर कम गिरेंगे। तो उसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग, हम अपना पैसा कम डिप्लॉय करें 30-50%, और बाद में गिरावट आ गई तो और कर लें, नहीं आई तो ऊपर की साइड में जब सब कुछ ठीक रहे तो और कर दें। मतलब अल्टीमेटली आपको एक कोई हार्ड मेंटेलिटी नहीं बनाना है कि मैं तो इसी प्राइस पे करूं, राइट। आपको ये सोचना है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस रहे बेसिस द ग्राउंड सिचुएशन, रादर देन कि मैं तो 70 रुपए में लगाऊंगा तो मैंने 70 में लगाना, ऊपर चला गया तो मेरे से मिस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं, राइट। तो थोड़ा सा आई डिड मतलब आई थॉट कि लेट्स डू दिस स्पेस जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर थिंकिंग, एंड थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। सेक्टर्स मैंने बता ही दिया है, पीएसयूज, फार्मा, आईटी वेरी सिलेक्टिव, केमिकल वेरी सिलेक्टिव, ये सब अच्छे करेंगे, अच्छे इन द सेंस कि ठीक ठाक करेंगे। यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव इन स्टॉक्स। आप ये देखिए डोमेस्टिकली एक्सपोजर जिनका है कंपनीज का, उन पे ज्यादा ध्यान देना। इंटरनेशनली सिचुएशंस आर वेरी वॉलेटाइल, मतलब उनका मतलब विक्स से कंपेयर करो तो बड़ा वॉलेटिलिटी वहां पे आने वाला है। इवन कुछ ऐसी चीजें जो कंपनी बता नहीं रही है लेकिन कॉशियसली बोल रही है कि भाई हाँ चैलेंजेस हैं, और वो आपको ग्राउंड में बहुत जल्दी दिखेंगे। इंडिया में देखने शुरू हो गए हैं। डिस्क्रिशनरी कंजप्शन को आप जाके चेक करो, डोंट बिलीव ऑन माय वर्ड्स दैट कि ऐसा हो रहा है।
बट आप जाके ग्राउंड पे जाइए प्लीज एंड आस्क देम, जस्ट मतलब रिटेलर में जाओ आप, तो हर सिटी में जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए मॉल है, हाई स्ट्रीट स्टोर्स हैं इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, जियो ब्रांडेड और नॉन, उनसे जाके पूछिए कि आपकी दिवाली कैसे गई, उनसे जाके पूछिए कि पिछले 1 महीने से आपको डिमांड कैसी लग रही है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कट ऑफ हो रही है, इट्स अ बिग सिग्नल, राइट, कि भाई आगे क्या हो सकता है। जब छटनियां होनी शुरू होंगी, इंडिया में तो हो नहीं रही हैं अभी, थोड़ी बहुत हो रही हैं, बट बाहर तो हो रही हैं, तो आप सोचिए क्या सिनेरियो, इंडिया में होनी शुरू होंगी तो फिर और ज्यादा दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से 2023 का जो फर्स्ट हाफ है ना, इट इज गोइंग टू बी वेरी टर्बुलेंट, एंड थोड़ा मेरे को और ग्राउंड चेक आ जाए तो नए साल से पहले आई ट्राई टू डू वन मोर स्पेस विथ 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 लॉट ऑफ प्रूफ्स कि 2023 का फर्स्ट हाफ कितना टर्बुलेंट रह सकता है अगर ये ट्रिगर रहे तो। हाँ, तो उसमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो भी बताएंगे आपको, और उस अपॉर्चुनिटी में मेरे को लग रहा है कि शायद कोविड टाइप की अपॉर्चुनिटी आपको कुछ सेक्टर्स में या स्टॉक्स में मिल जाए। कोविड टाइप की मतलब ऐसा मत सोचना कि मार्केट जो है निफ्टी आधी हो जाएगी, राइट, इन द सेंस कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन्वेस्ट करने का कि आप 25-26 का व्यू लेके चलो तो मल्टीबैगर जो रिटर्न्स आए हैं पिछले 2-3 साल में कोविड के बाद स्टॉक्स में, वैसे रिटर्न उन स्टॉक्स में सेक्टर्स में आए, राइट। तो बाकी थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड आई वुड लाइक कि आप जो स्पेस का लिंक है उस पर जरूर अपना फीडबैक शेयर करें, दैट इज द ओनली मोटिवेशन फॉर मी, rest I keep sharing with my people in the education group, and I believe कि आने वाले कुछ मतलब आने वाले दिनों में I'll try to spend more time on space and education basis my limited understanding. पिछले 2-3 महीने से I was very much busy, so I could not able to do much spaces और ज़्यादा कुछ मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, but I'll be active in probably after 20th December, right? सर एक सेक्टर के बारे में पूछूंगा, बिकॉज जनरली व्हेन डिमांड ऑफ डिस्क्रिशनरी थिंग्स विल स्लो डाउन, एफएमसीजी व्हिच इज द नीड ऑफ एवरीवन सर, I need your take on FMCG sector, sir. Can we get bullish on this sector, sir? देखो Especially बुलिश when रहना चाहिए क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिरे हैं, बट सभी कंपनीज पे नहीं। अब जैसे एचयूएल है, एचयूएल के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे न्यू एज ब्रांड जो आ रहे हैं ना वो कॉम्पीट कर रहे हैं, पता है आपको। अब जैसे एक टाइम पे थे फेस के लिए आपको फेयर एंड लवली ये सब या लिमिटेड चीजें थी जो आप लेते थे और काम चला लेते थे। आज की डेट में मामाअर्थ जैसी कंपनी या स्टार्टअप जो है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं स्पेस में, या और भी बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो आपको अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो द कंपटीशन इज वेरी हाई, राइट, हाउस होल्ड में और इसमें। तो एफएमसीजी कंपनी आपको वो देखनी है जिसका शेयर सिग्निफिकेंट है। तो मेरे माइंड में तो 2-4 कंपनी आती हैं जहाँ पे ज्यादा कंपटीशन नहीं है, मतलब उनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बेमिसाल हैं। तो लाइक डाबर हो गया, राइट, डाबर के आयुर्वेदिक या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका मार्केट शेयर रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में ऐसा है कि वो टूटेगा नहीं जल्दी से, राइट। पतंजलि को आप देख सकते हो, पतंजलि फूड्स हो गया जहाँ पे बहुत सारा ग्रोथ अपसाइड लेफ्ट है अभी तक, या कह सकते हो कि वैल्यूएशन के टर्म में बड़ी चीप है, राइट। जेडएस वेलनेस करके एक कंपनी है, राइट, अच्छे ग्रुप की, जहाँ पे उसके प्रोडक्ट्स की सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है, तो वो टूटेगी नहीं जल्दी से। तो यहाँ पे कुशन ज्यादा है, तो एफएमसीजी में मूव तो रहेगा, इंडेक्स बता रहा है, लेकिन कंपनीज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी 4-5 जो अच्छी हैं, जहाँ पे मार्केट शेयर टूटने के चांसेस कम है, जहाँ पे कंपटीशन नहीं मिल रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। राइट, बाकी तो देखो सब एफएमसीजी कंपनीज में आप नहीं कह सकते, वो वाली बात नहीं रही है जो 5 साल पहले थी। न्यू एज जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो कंपटीशन दे रहे हैं, और शायद वो कंपटीशन और बढ़ेगा भी। तो मामा अर्थ ने, आप देखो ना, मामा अर्थ का जाके चेक करो, इट्स केस स्टडी फॉर ऑल ऑफ यू कि मामा अर्थ ने आने के बाद कितने ऐसे कंपनीज थे, अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे, मतलब लॉरियल और ये सब, मतलब आप सोचो कि कितने लोगों को कंपटीशन दे दिया उसने आके अपने प्रोडक्ट से। जो भी नेचुरल या जो भी थेरेपी बेस्ड वो प्रोडक्ट लेके आई है मामा अर्थ, राइट, गुड़गांव बेस्ड स्टार्टअप है, उनके फाउंडर जो हैं वो आते भी हैं शार्क टैंक उसमें। तो ऐसे और भी स्टार्टअप्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आ रहे हैं, मार्केट में आ चुके हैं,
और compete कर रहे हैं, मतलब उन ब्रांड से जो 20-20 साल से एस्टेब्लिश्ड हैं, आप सोचिए। तो मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन फेयर एंड लवली जैसा एक प्रोडक्ट जो है ना, वो अर्बन एरियाज में इट इज लूजिंग द चार्म, जो एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट था एक्चुअल का। रूरल एरियाज में तो ठीक है, उसने पकड़ रखी हुई है फिर भी, लेकिन अभी नए लोग जो हैं, युवा लोग हैं रूरल एरियाज में भी, सब लोग के पास सोशल मीडिया है, फोन है, तो दे आर मोर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स ऑन, सर्च करते हैं सब लोग। वो बात नहीं रही कि ठीक है किसी ने रिकमेंड कर दिया तो हम वही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर स्किन हेल्थ, हर चीज में। तो ये जो पूरा वेलनेस इंडस्ट्री है, यहाँ पे क्या हो गया है, ये ग्रो तो करेगी। वेलनेस इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी इंडिया में बननी है, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत रहेगा, ब्रांड्स बहुत आने हैं, अभी तो आए हैं, और अभी से आप देखो ना कि इनको बड़ी कंपनीज को कॉम्पीट कर रहे हैं, ब्रांड्स का पेनिट्रेशन खत्म कर रहे हैं, कह सकते हो उनकी मार्केट शेयर वो कर रहे हैं। तो ये सारा मार्केट शेयर का गेम था। तो रीजन बीइंग आप देखो कि ये टॉप लाइन में उतना ग्रो नहीं कर पा रहे जितना कर रहे थे, राइट। तो अब ठीक है, रॉ मटेरियल कॉस्ट गिरने से टॉप लाइन कम ग्रो करे और बॉटम लाइन थोड़ी इंप्रूव हो जाए, वो उससे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता रहेगा, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। बट मेरा मानना ये है कि हो सकता है कि ग्रोथ धीरे 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 उतना ना रहे एफएमसीजी कंपनीज में, जितना हम सोच के चलें कि भाई ये तो परमा इन नेचर रहेंगी। बट हाँ, कुछ कंपनीज हैं, डाबर जैसी कंपनी होगी जिसके प्रोडक्ट का बेस ही अलग है, जो बनाता है एक क्लास प्रोडक्ट्स है आयुर्वेदिक का, ब्लेंड एंड ऑल, जहाँ पे कॉम्पीट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ये सब कंपनीज शायद बेटर ग्रो करेंगी एचयूएल से और इससे। और आईटीसी का तो हम पिछले साल भी बोलते रह गए कि आईटीसी का जो पूरा एक कंसोलिडेशन था वो खत्म हो गया, तो इन्होंने तो ग्रो करना ही है वैसे भी। तो आपको वो कंपनीज में ग्रो करना, मतलब सॉरी इन्वेस्ट करना है जहाँ पे ग्रोथ का चैलेंज नहीं है, जहाँ पे टेलविंड्स ज्यादा है, हेडविंड्स कम है कॉम्पिटिटर के। तो आईटीसी हो गया, आपका पतंजलि फूड हो गया, आपका ये डाबर हो गया, ये सब कंपनीज मेरे को लग रहा है बड़ी कंपनीज में अच्छी करेंगी। और जायडस वेलनेस इज ए सिक्योर बेट, अगर वो बाकी सेगमेंट जो उन्होंने लिए थे हिंज इंडिया से उस पर थोड़ा काम करें तो अच्छा खासा काम चल जाएगा उनका, ठीक है। एब्सोल्युटली सर। सर आपने डिफेंस का जो टेक दिया था, डिफेंस सेक्टर विल डू गुड, उसमें काफी बेनिफिट हुआ था। सो अभी क्या है सर, जो डिफेंस का जैसे बाद में न्यूज आया आपका ये पॉडकास्ट पहले ही हो चुका था, स्पेस जो आपने कराया था डिफेंस के बारे में टेक बताया था, बाद में वो न्यूज आया कि वी आर नॉट गोइंग टू इम्पोर्ट द डिफेंस सेक्टर और यहीं पे सब कुछ होगा, फिर उसमें एकदम रैली आ गया। सर ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगा क्या अभी लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में रहेगा, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, मेरा मानना ही है। ओके ओके। बिकॉज यहाँ पे क्या बड़ा एक्सट्रीम हो गया, मतलब म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं, सब आने लग गए, मतलब कोई छोड़ना नहीं चाहता इसको, थोड़ा बॉम्बार्डिंग हो गया है। तो किसी भी स्टॉक, मतलब देखो सेगमेंट फंडामेंटली कितना भी बुलिश हो, जब उसमें एक्सेस हो जाता है ना, ठीक है, सब लोग खरीदने लग जाते हैं, तो फिर कोई बेच नहीं पाता है, तो वो सेक्टर इतना बढ़ता नहीं है, फिर वो कंसोलिडेशन में चला जाता है, समझ रहे हो आप। और कंसोलिडेशन में क्या होता है, फिर जब मार्केट में कोई फॉल आएगा, राइट, तो वो सेक्टर गिरेगा साथ में, एक बार तो उस एक्सेस को निकालेगा, समझ रहे हो। तो इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या मतलब कुकर में क्या होता है, जब पूरा बढ़ जाता है, सीटी जब तक आती नहीं, जब तक वो चीजें रिलीज नहीं, मतलब वो प्रेशर रिलीज नहीं होता है, राइट। तो अभी वो एक्सेस हो गया है सेक्टर में, सब लोग घुस गए हैं इसमें। तो जब तक कोई ऐसा सिग्निफिकेंट करेक्शन मार्केट में ना आए और एक पैनिक ना आए मार्केट में, पैनिक आएगा तो क्या होगा, हर सेक्टर से पैसा निकलेगा, तो यहाँ से भी निकल जाएगा। तो एक्सेस निकलना जरूरी है, वो एक्सेस एक बार निकलेगा ना, तो यहाँ पे सेकंड लेग जो है ऑफ रैली वो तैयार होएगा, उस रैली में हो सकता है आपको बहुत बड़े सरप्राइजेस भी मिले। पर फिलहाल रिस्क एंड रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म के लिए कोई फेवरेबल नहीं है यहाँ पे आपको। शायद आप अगर 15-20-25% रिटर्न के लिए जाओ मीडियम टर्म में, वो मिलने के चांसेस कम है। स्टॉक यहीं पे रहे, यहाँ से 5-10% गिर जाए उसके चांसेस ज्यादा है। राइट सर। सर एक साल के लिए आईटी सेक्टर को मतलब एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें अभी यहाँ से इस लेवल से, जो अच्छे, क्योंकि सर मतलब हिस्टोरिकली मैं देख रहा था मैंने एक एवंस। एग्जांपल दिया, देखो आपको आईटी सेक्टर वैल्यूएशन वाइज इज वेरी चीप राइट अभी, ओवरऑल नहीं, मतलब कुछ कंपनीज, वो राइट। कंपनीज पे ध्यान दो जिनका डोमेस्टिक में बिजनेस है, ग्लोबली तो बिल्कुल ध्यान मत देना। और वो बिजनेस हो जो मंदी में भी काम करे। मैंने एक एग्जांपल दिया था, ओटीपी आपको हर दिन आता है किसी ना किसी काम के लिए, और मंदी में भी आता रहेगा।
तो जो कंपनी इस पे काम करती है, ओटीपी भेजती है, उन पे आप ध्यान दीजिए। अब आप सोच लीजिए कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ सर। एक कंपनी है इन्फीबीम एवेन्यू, जो कि अभी एग्रीगेटर मिला है उनको फॉर पेमेंट गेटवे, एंड 16-17 रुपए का है, बट 5,000 का मार्केट कैप है उसका। एंड देयर आर मेनी कंपनीज हु आर इनटू दिस स्पेस। सर एक चीज है, जैसे आईटी का मैं बता रहा था कि सर आई वाज गोइंग थ्रू द हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न्स ऑफ आईटी सेक्टर। आई वाज कंपेयरिंग ऑल दी सेक्टर्स विद निफ्टी 50। Then I found ki sir, Nifty IT is the only sector which has outperformed significantly Nifty, Nifty 50 with a huge margin, right, since inception. But in last 10 years, it's the banking Nifty which has taken over it, right? So sir, kya IT sector, it has been a wealth creator and it will be a wealth creator. So what I was thinking कि 2023 तक ये रिसेशन यदि आ गया तो IT will be definitely will be available at more dirt rate, right? तो इसको क्या एक्यूमुलेट करे सर? बिकॉज आई थिंक इट इज स्प्रिंग इन मेकिंग। अभी स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, एनर्जी रिस्टोर होगा, एंड देन इट विल बाउंस बैक इन द ईयर 2024 या 2025। देखो आईटी दो भागों में बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके। पहला मतलब पहला भाग होएगा द कंपनीज विच हैव एक्सपोजर इन डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल मार्केट, और जिनका मतलब ये सर्विस बेस्ड बिजनेस रहेगा, एचसीएल और ये सब होगी जो, राइट। तो यहाँ पे इतना ग्रोथ अवेलेबल नहीं है। मेरा मानना ये है कि जो न्यू एज कंपनीज हैं या जिनका फोकस फ्यूचर फॉरवर्ड जो मार्केट्स हैं, इट कुड बी एनीथिंग, बायोटेक्नोलॉजी हो गया या इट कुड बी एआई हो गया। एआई का बहुत काम आना है, तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई में काम कर रही है कंपनी, और उन चीजों उन सेक्टर्स के लिए काम कर रही है जो सेक्टर ग्रो करने वाले हैं, कुड बी एनीथिंग, राइट। तो वो का दबदबा रहेगा, राइट। तो जैसे मैं रिटेल की बात करूँ, रिटेल में अभी फुटफॉल काउंटिंग मशीन इंस्टॉल हो रही है धीरे धीरे धीरे, हमारे मतलब लाखों रिटेल स्टोर्स हैं। तो अभी तक तो कैमरा लगता था, अभी तक कैमरा के साथ साथ क्या लग रहा है आपका कि वो काउंट करके आपको बताएगा ऑटोमेटिकली, एआई बेस्ड भी, कि कितने लोग आए, कितना कन्वर्जन हुआ आपका, कितने गए कितने नहीं, आपको ट्रेंडिंग बताएगा पूरा, बहुत सारी चीजें। तो एआई बेस्ड जो कंपनीज है वहां पे ध्यान दीजिए, राइट। क्लाउड कंप्यूटिंग और इंडिया बेस्ड जिनका हो स्पेसिफिकली, बिकॉज इंडिया में अगर आप आईटी पेनिट्रेशन देखोगे तो बहुत कम है, समझ रहे हो। मतलब जनरली फोन और लैपटॉप की बात मत छोड़िए, मतलब फोन की बात छोड़िए, लैपटॉप की अगर मैं बात करूं तो लेट से 5G भी आना है अभी, ठीक है। और 5G से पहले 4G का कनेक्ट अभी भी बहुत सारे रूरल एरियाज में है ही नहीं ढंग का, तो वो ठीक होएगा। तो बहुत सारा मतलब अभी उस पर काम होना है। तो आईटी में डोमेस्टिकली बेस्ड जिनका बिजनेस हो, चाहे कम्युनिकेशन में हो या ओटीपी भेजने पे हो, जैसे आपने बताया पेमेंट गेटवे में हो, ये सब में ध्यान दीजिए, ये सब का काम बढ़िया होएगा। बाकी जिनका ट्रेडिशनल बिजनेस है, सर्विस बेस्ड, बाहर का इधर का उधर का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, किसी चीज के लिए सर्विस बेस्ड दे रहे हैं, वहां पे रहेगा, लेकिन मार्जिन जो है वो ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। तो आईटी में उन कंपनीज पे फोकस करिए जिनके मार्जिन बहुत अच्छे एक्सपैंड करेंगे या बढ़ेंगे और सस्टेन करेंगे। वो कंपनीज का ये हो सकता है कि अच्छा खासा पी कमांड करें, राइट। फिलहाल तो मेरे को लगता है कि आईटी सेक्टर आने वाले 3-4 महीने में अभी भी उसी पी पे है जिस पी पे चल रहा है, बढ़ भी जाएगा घट भी जाएगा, राइट। एक बार मतलब आईटी सेक्टर का पी का बॉटम लग जाए 1-2 महीना में, उसके बाद आप वो कंपनीज को देखिए जो करेक्ट भी हुई है लेकिन अर्निंग उनकी करेक्ट नहीं हुई है। तो उदाहरण के रूप में एक कंपनी जो मसल लैक करता हूँ, राइट, और अच्छा फ्यूचर स्कोप मैं मानता हूँ उस कंपनी का है, कंपनी का नाम है रूट मोबाइल, ठीक है। वो आप देख सकते हो, राइट। कंपनी की प्राइस में करेक्शन हुआ है क्योंकि आईटी सेक्टर की पी में करेक्शन हुआ है, उसकी भी पी करेक्ट होगी, लेकिन उसका ईपीएस करेक्ट नहीं हुआ है, उसका ईपीएस बढ़ रहा है। और कब तक ऐसा होएगा कि पी घटती रहे, कितनी घट जाएगी और घट जाएगी, लेकिन जिस दिन भी आईटी सेक्टर की पी का बॉटम लगेगा तो ये वो पहली कंपनी की लिस्ट में आएगी जो पी एक्सपेंशन मोड में मतलब आपको प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक मैंने एग्जांपल के लिए मेरी पर्सनल जो अंडरस्टैंडिंग वो बताइए, ठीक है। एब्सोल्युटली सर। सर किसी का रिक्वेस्ट होगा तो आप ले लो, नहीं तो मेरे पास तो और भी क्वेश्चन है, मैं तो अपने डाउट्स और क्लियर कर ही रहा हूँ आपसे। सो एक बार यदि किसी का है तो आप ले लो, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं ही सिर्फ करते रहूं। नहीं, क्वेश्चन वगैरह तो देखो आते रहेंगे और मेरे को आया भी है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ अगर किसी का आया हो। किसी ने मेरे से पूछा है,
बबीता जी ने बोला है कि आरवेनएल आपने बताया था डबल हो गया है, शुड आई बुक प्रॉफिट एंड सर? मैम आप देखिए, आपको लगता है करना चाहिए, अगर आपका बहुत जल्दी में डबल हो गया तो करना चाहिए। मतलब आरवेनएल मेरा पर्सनल एक वो था व्यू, नवंबर में जो बताया गया था, मैंने पर्सनली ग्रुप में भी शेयर किया था और ओपनली भी बताया था रेलवे स्टॉक्स के लिए। तो अगर वो डबल हो गया पैसा तो आपको करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बड़े शॉर्ट टर्म में हो गया। ओटीपी सर्विस के लिए किसी ने कुछ रिकमेंड किया है, रूट मोबाइल, ठीक है, रूट मोबाइल भी ओटीपी सर्विस में है। थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आगे उसके प्लान्स क्या हैं। रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी सर। देखो गोल्ड की कीमत, गोल्ड की वैल्यू गोल्ड ही रहती है। गोल्ड को आप ऑनलाइन बाई नहीं करते कभी भी। मतलब ट्रेडिंग की बात तो अलग है, लेकिन अगर आपको सोना खरीदना है आपको शोरूम में जाना पड़ता है। तो वही चीज मैं चाहता हूँ कि हमें मेरे स्पेसेस में रहे कि हम अगर कुछ अच्छा डिस्कस करें तो आप लोग आए, आप मतलब मेरे टाइम की वैल्यू भी रहे और आपके टाइम की वैल्यू रहनी चाहिए, सबका टाइम वैल्यूएबल हो। फर्टिलाइजर गुड सर। वेयर इज द चैनल लिंक? सर चैनल लिंक बायो में है, आप चेक कर सकते हैं। एंड इट इज एजुकेशनल चैनल ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन ऑयल सेक्टर। सर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो बहुत ज्यादा अंडरवैल्यूड है, तो मेरे को लगता है कि वहां पे गिरावट शायद कम रहेगी बहुत ही अब आने वाले 5-6 महीने में, और इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी वहां पे है। दिस इज माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। लिकर सेक्टर, सर लिकर सेक्टर में देखो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग तो गिर रही है, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में गिरने का मतलब है लिकर सेक्टर की स्पेंडिंग भी गिर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? हाँ, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ सीधी बात, अभी कॉर्पोरेट इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, सारा कुछ होता है। अब मैंने जैसे बताया कि कॉर्पोरेट इवेंट हो सकता है कम हो, स्पेंडिंग कट ऑफ हो कंपनी की तरफ से, तो उन्हीं इवेंट में बहुत सारा लिकर का यूज होता है, या मतलब आप लोग सब समझ सकते हो, ठीक है? तो वही नहीं होएगा तो फिर कहाँ से आप ड्राइव करोगे अर्निंग ना, राइट? एसेट लोकेशन नीड टू चेंज। अर्का जी saying hearing you after a long time. Thank you, Arka ji. Actually, I was pretty much busy on some professional commitments as well as personal commitments during last 2-3 months, so I was not active. मतलब not active on the Twitter, but trades तो लिए थे. But I मतलब this is my responsibility, social responsibility. अभी मेरे को एक्टिव रहना पड़ेगा because I believe 2-3 महीना थोड़ा सा मतलब वॉलेटिलिटी बहुत रहेगा मार्केट में, इवेंट्स इतने अनफोल्ड हो रहे हैं डे बाय डे, वीक ऑन वीक, जहाँ पे आपको सीखना भी है और कोशिश दोनों रहना है। ये मतलब मैं आपको सभी को सलाह देना चाहूंगा, पर्सनल सलाह देना चाहूंगा। What's your current view on drastic fall in US market? सर यूएस मार्केट में मतलब अगर मैं देखूं तो यूएस मार्केट में थिंग्स आर ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड, राइट? और हॉकी शो डॉविश कमेंट्री भी आ जाता ना, तो देखो वहां पे सीपीआई फॉल हुआ, उसके बाद वहां का मार्केट राइज नहीं किया, कल की कमेंट्री के बाद तो और गिर गया। मेरे को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म राइज वहां पे पूरा हो गया है। अभी कोई मैक्रो में चेंजेस आते हैं तो ही वहां पे रैली आएगी, नहीं तो मेरे को लग रहा है उससे पहले एक छोटी करेक्शन आएगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ 4 से 6%, और उसके बाद हम लोग रिव्यू करेंगे कि वो करेक्शन और बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। उसके बाद हो सकता है कि एक रैली आए शायद जहाँ पे आपको यूफोरिया दिखाई दे, और उसके बाद तो फिर जिस तरीके से मैक्रो डेवलप हो रहे हैं तो शायद कॉशियस होना पड़ेगा, राइट?
बट मतलब थोड़ा मेरे को मतलब what I feel कि just wait for 2 3 4 weeks, just see the events to unfold, specifically people who are going to invest for medium to long term. मतलब long term का तो चलो ठीक है, but medium term short term में थोड़ा सा ध्यान देने का है, because for short term people capital is everything. Today's fall, I've already mentioned what chart is saying, evening star, and let's see. Probably we'll see a follow up of that pattern, and if this is not true, evening star ko, so we have to negate that pattern. Means we have to cross 18,700 on Nifty and 10,200 on small cap index. So it will be a negation. Baseless as okay, so market doesn't follow the news, so we always wait for the news कि मार्केट चले गिरे. देखो कई बार आता है ऐसा होता है कि न्यूज आती है तो थोड़ा मार्केट चलता है, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट गिरता है उसके बाद न्यूज बनती है कि मार्केट इसलिए गिर गया, ऐसा भी होता है. तो आज मार्केट गिरा है उसके बाद न्यूज बनी है, राइट. सो डोंट डिपेंडेंट ऑन द न्यूज कि न्यूज आए तभी मार्केट चले या गिरे, राइट. कई बार मार्केट का गिरना उसके बाद न्यूज आती है कि क्यों गिरा है, ये भी होता है. Somebody saying, sir, could you share the channel group link? Sir, group link is there in the bio. Okay, so Mr. Let me unwind. So let me wind up this space. Before I wind up, stock market intelligence. आपका नाम क्या है सर? यस सर, धीरज सर. धीरज जी, आपसे बात करके अच्छा लगा और आई एम श्योर आपने पहले सुना होगा तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा. आई एम जस्ट वांट टू लिसन द वर्बल फीडबैक ऑफ पीपल लाइक यू कि आपको कैसा लगता है हमारी बातें सुन के. नहीं सर, आई जस्ट वेट फॉर योर स्पेस. मे बी काफी टाइम से ट्विटर से थोड़ा बाहर चला गया था, बट सर आई जेन्युइनली बताता हूँ सभी को, बिकॉज यू नो फोरकास्ट दो सेक्टर्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स. ऐसा नहीं है कि यार ये इसको ले लो उसको ले लो. आपने डिफेंस के बारे में बताया था, इथेनॉल के बारे में बताया था, एंड वी ऑल गॉट द बेनिफिट ऑफ दो सेक्टर. पैसे भी आए उस सेक्टर में, लोगों ने पैसे भी बनाए. नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रा में ऑलरेडी काफी मूवमेंट आ चुकी है. एंड पीएसयू एंटरप्राइज, इट मेक्स सेंस सर. आप जो बोल रहे हो इट मेक्स सेंस. ऐसा नहीं है कि मेरे को स्पेस करना है एंड कुछ भी सेक्टर बता दो जिसमें पैसे आ रहे हैं. एंड यू स्पोकन अबाउट द डीप वैल्यूज लाइक पीएसयू बैंक्स आल्सो, जो अभी यूको बैंक ये सारे चलने लगे हैं. तो आई मतलब आई एम पर्सनली आई फॉलो योर स्पेस. जब भी कुछ होता है मेरे को दिखता है, मैं इमीडिएटली ज्वाइन कर लेता हूँ. तो मैं लेट से ज्वाइन किया, बट मेरे को मौका बहुत ज्यादा मिला आपसे बात करने का. दैट वाज आई वाज फॉर्चुनेट इनफ. So, देखो एक चीज ठीक है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक. एक चीज है जो आपने भी बोला एंड आई वुड लाइक टू रीइटरेट, बिकॉज मेरा है तो है, मैं 10 साल से उसी साइकोलॉजिकली मैं चीजों को बहुत ट्राई करता हूँ. ठीक है, मार्केट में साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग आपको जितनी रहेगी ना ग्राउंड की क्या हो रहा है उसकी, उतना आपका मतलब दैट इज समथिंग विच इज कैटलिस्ट, राइट. तो मैं जो भी शेयर करता हूँ उसकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग करके फिर ही शेयर करता हूँ. इफ दैट इज समथिंग जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं कभी बात ही नहीं करूंगा उसकी, राइट. बिकॉज आपको अगर वो चीज समझ में नहीं आ रही है साइकोलॉजिकली तो आप किसी को समझा नहीं सकते हो. बाकी घुमा फिरा के तो जैसे आपने बोला कि कैसे भी समझा सकते हो आप कि ये होगा वो होगा, ये कट जाएगा तो ये नहीं होगा और ये हो जाएगा तो ये नहीं होगा. हम तो सीधी लेवल की तो बात ही नहीं मैं करता, मैं तो सिर्फ सेक्टर की बात करता हूँ और उसमें जो स्टॉक्स होते हैं हम उनकी छोटी मोटी डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई अगर ये सेक्टर अच्छा कर पाएगा तो ये स्टॉक अच्छा कर सकते हैं, जैसा अभी भी किया हमने, राइट. और फैक्ट्स के ऊपर तो मोटा मोटा यही है मेरा सलाह सबको कि आप सब लोग भी सीख सकते हो, राइट. मार्केट में इन्वेस्ट करना मुश्किल नहीं है, मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाना मुश्किल है, राइट. इन्वेस्ट तो कोई भी कर सकता है, सबके पास पैसे होते हैं, लेकिन पैसा आपको अगर बनाना है इन्वेस्ट करके तो इजी मनी हम लोग बोलते हैं ना, इजी मनी नहीं बनती है. इजी मनी क्यों नहीं बनती? बिकॉज हम इजिली सोचते हैं कि इजी बन जाएगी, चलो ये कंपनी ग्रो कर रही है यहाँ पैसा लगा दिया. नहीं, इजी मनी तब बनेगी जब आप उसको इजिली मतलब उसको इजी बना दोगे, आप सर्च करोगे, जानोगे मार्केट में क्या हो रहा है. और मेरा मानना है कि आप 50,000 लगा रहे हो, 50,000 मतलब 5 लाख लगा रहे हो या 50 लाख लगा रहे हो या 5 करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको हक है कि आप एक एक पेनी लगाने से पहले आप रिसर्च करो कि आप किस कंपनी में लगा रहे हो,
राइट? आप किसी की सलाह लो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो भी रजिस्टर्ड लोग होते हैं, या आपकी दोस्त, कोई भी जिसकी भी आप सलाह मानते हो, या सलाह लेने के बाद भी आप खुद का डिसीजन लो पर्सनली, मतलब दैट इज योर ओन डिसीजन कि मेरे को लगाना है कि लगाना। लेकिन जो भी कुछ करो खुद समझने के बाद करो। इवन इफ यू आर टेकिंग द एडवाइस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, उसके बावजूद भी मैं बोलूंगा कि एक बार खुद समझे, राइट? कि मैं इस कंपनी में पैसा क्यों लगाऊं, मतलब या मैं इस सेक्टर में पैसा क्यों लगाऊं, अगर लगा रहा हूं तो क्या, मतलब मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मेरा पर्सनल एक मानना है कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, कोई सेक्टर, उस सेक्टर में आप पैसा ज्यादा लगाओ ही मत, मैं तो कह रहा हूँ, अनटिल अनलेस आपका इन्वेस्टर एडवाइजर बोले तो अलग बात है। लेकिन अगर आप खुद इन्वेस्ट करते हो तो आपको लगाना नहीं चाहिए उस पैसे में जो मतलब आपको समझ में ना आए। नहीं तो वहां क्या होता है, बाद में और तकलीफ होती है। फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या गलत किया, राइट? और जब हमको समझ में आता है तब तक बहुत देरी हो जाती है, तब हमको लगता है यार काश ये भी चीज मैं पहले समझ लेता और यहाँ फंसता नहीं, राइट? तो वो चीज मैं चाहूंगा कि आने वाले 5-6 महीने में ना हो। काफी लोगों ने पहले भी गलतियां करी हैं, और गलतियां होती रहेंगी, बस कम होनी चाहिए, राइट? तो आने वाले 3 से 4 महीने ऐसे हैं जहां पे मार्केट आपको चाहेगा कि गलती करवाए। शायद आने वाले पिछले 2-4 वीक में हो चुका है। बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे मार्केट ने गलती करवाई है लोगों को, थोड़ा बहुत फोमो क्रिएट करके कि आप यहाँ पे लगाओ मीडियम टर्म के लिए, आपको पैसा बनेगा शायद, लेकिन बन नहीं रहा हो, वो स्टॉक नीचे ही है आज की डेट में, ठीक है? बट वो बढ़े ना, ज्यादा ना हो, ये मकसद रहेगा। और दूसरा मकसद ये रहेगा कि जब एक अपॉर्चुनिटी आई बड़ी, तो हम लोग एक यू नो बड़े कन्विक्शन के साथ बोल सके कि हाँ अब पैसा आपको ज्यादा लगाना चाहिए या लगाना चाहिए उस टाइम पे, अगर आपने नहीं लगाया तो, राइट? और एक रिटर्न अच्छा बना सके, ठीक है? तो हम इस चीज पे बात करते रहेंगे, एंड आई ट्राई कि मैं यूट्यूब पे एक सीरीज लेके आऊँ उसकी बहुत जल्दी, ठीक है? टिल दैट टाइम, good night to all of you, and take care of your health and wealth, and keep learning and sharing. Thank Ultimately you so much, sir. it's a Thank you. it's a highway for growth. आप सीखते रहो और सिखाते रहो, राइट? तो सरस्वती जी जो है आप पे हमेशा मेहरबान रहेंगी। ये कई लोग बोलते हैं कि सीखना अच्छी बात है, लेकिन जब सिखाते हो तो आपके ऊपर सरस्वती जी की मेहर रहती है, राइट? जो लोग मानते हैं तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? ओके, बाय, गुड नाइट। Done, sir. Thank you so much, sir. Good night. Take care, sir. Bye.